Hello everyone, welcome back to O2IS Academy YouTube channel. So here we are in our Polity Byte series जिसमें हम कर रहे हैं अभी यूनियन एग्जीक्यूटिव. So topic for the day is CAG. This is one of the bulwark of our government. So today we will study in detail the CAG of our government. To download the PDF of this particular lecture and other lectures of Polity Bytes, you can subscribe to our Telegram channel O2IS Academy. Plus, you can also download our app, O2IS Academy app, in which you will get all the PDFs of this particular Polity Bytes lectures. Plus, you will also get the study material for other subjects. So, let's start with today's topic, that is CAG, Comptroller Auditor General. Okay, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑफिस है. इस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए अंबेडकर जी की एक स्टेटमेंट भी है. सो अभी वी विल स्टडी द स्टेटमेंट पहले, जिससे आपको पता लगेगा कि वाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important office of the India. So I am of the opinion that this dignitary or officer is probably the most important officer or in the Constitution of India. He is the one man who is going to see that the expenses voted by Parliament are not exceeded or varied from what has been laid down by Parliament in the Appropriation Act. So this is one of the very important office because पार्लियामेंट कैसे खर्चा कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे खर्चा कर रही है, किसी की तो नज़र होनी चाहिए. सो द रीज़न बिंग यू ऑल आर पेइंग टैक्सेस, या गवर्नमेंट के पास जहाँ से भी पैसा आ रहा है, सर्टन फीसेस, टैक्सेस, एनीवेयर, तो उस पैसे को यूज़ कैसे किया जा रहा है, जो बजट्स आ रहे हैं उसके यूज़ कैसे किया जा रहा है. सो दिस शुड बी स्टडीड बाय समवन वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस होना चाहिए. फाइन. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफिसर. मान लीजिए आप लोग सब टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स का यूज कैसे हो रहा है उसको भी तो कोई स्टडी करना चाहिए. सो दैट पर्टिकुलर विल बी स्टडीड बाय वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस, दैट इज द ऑफिस ऑफ आर CAG. नाउ इतना ही आप समझिए, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस, अगर इन सिंपल वर्ड्स हम पढ़ें तो इसका मतलब है कि जो भी पैसा खर्च होता है उसकी पर्टिकुलर जो हर डिपार्टमेंट की, हर गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसको स्टडी किया जाएगा. और उसको स्टडी कौन करेगा? दैट इज वन अथॉरिटी, दैट इज CAG. इसके साथ पब्लिक अकाउंट कमेटी कैसे काम करते हैं वो हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द CAG तो इसका एक प्रोसेस है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को भी स्टडी करने का. ओके, एंड सी वी आर स्टडिंग द यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो एग्जीक्यूटिव, CAG इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. लेकिन जब हम पैक पढ़ेंगे मीन्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पढ़ेंगे, सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी विल बी द लेजिस्लेटर्स. ओके, so when we start with our chapter of the CAG, so पहला आर्टिकल जो आता है दैट इज आर्टिकल नंबर 148. बाकी सब आर्टिकल्स जब हमने ऑफिस पढ़े एग्जीक्यूटिव के, सो वी हैव स्टडीड दैट वन आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पर्टिकुलर office. So for the CAG, here is the office, that is the office of the Comptroller and Auditor General of India, and this is an independent office. Okay, ये बहुत important है. In further slides we will also study कि what gives the independence to this office, what ensures the independence of this office. इस authority की independence के लिए कौन से provisions हैं, काम करते हैं, वो भी हम अभी further पढ़ेंगे, because there will be a specific articles for that also. So article number 148 कहता है कि there should be a CAG, one of the bulwarks of the democratic system of government in India. We study about the bulwarks. So ये भी एक bulwark है, means that is a very important part. Bulwark means to keep an eye. In short, when we talk about the bulwarks, that means we keep an eye, check and balances. Okay, so it keeps a check and balance on the financial part of our government's function. He is an independent authority under the Constitution. He is head of the Indian Audit and Accounts Department and chief guardian of the public powers. Next is his duty is to uphold the Constitution of India and laws of Parliament in the field of financial administration. So basically CAG option, accounts option, auditing, ये वो सब कुछ, it's all related to the financial administration of the government, because finances are very important thing which will make run our country. कुछ भी होगा, कोई स्कीम आएगा, उसके लिए पैसा तो चाहिए. So उस पैसे का यूज कैसे किया जा रहा है, there should be someone who keep the check and balance on that particular part. So that is who will keep that, that is the CAG. And but this, he is not a financial advisor. I'll tell you one more thing in this particular office has been taken by from the Britain. Okay, जब हम अभी लास्ट में हम पढ़ेंगे कि what is the difference between the CAG of the Britain and CAG of the India, then we will see कि
डिफरेंस कहाँ मैटर करता है, फाइन, बिकॉज देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। जैसे कि इसमें कहा गया है नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर। देखिए जब बात हम करते हैं, सी वेट फॉर सम मिनट, वी विल कम ऑन दैट स्लाइड, देन वी विल स्टडी दैट पार्ट। सो आर्टिकल 48 में हमें क्या बोलता है, सेम इज द थिंग। सो दीज आर द पॉइंट्स जो अभी हमने करा। ओके, सो अब हम बात करेंगे इन आर्टिकल्स की डिटेल में। ओके, तो अभी हमने आर्टिकल नंबर 148 पढ़ा, जिसमें हमने बोला कि कैग की अपॉइंटमेंट होगी, उसकी ओथ, कंडीशंस एंड सर्विस, दिस विल बी मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 148। देन हियर इज आर्टिकल 149, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द CAG वी स्टडी फ्रॉम 148 टू 151 आर्टिकल्स। 149 में बोलता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द CAG। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 150, द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, बट मेक श्योर टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो, एंड of the states shall be kept in such form as the president may on the advice of the whose CAG। अकेले यूनियन के नहीं, स्टेट के अकाउंट्स का भी ध्यान रखा जाएगा, प्रेसिडेंट ध्यान रखेंगे, लेकिन किसके एडवाइस पे, एडवाइस विल बी ऑफ अ CAG। ओके, देन आर्टिकल 150 विल द रिपोर्ट्स ऑफ द CAG of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each house of the Parliament। I'll tell you one thing, होता क्या है, we'll study one process। कैग ने एक रिपोर्ट बनाई, ओके, उस रिपोर्ट को वो सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को दोनों हाउसेज में भेजेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे रोल प्ले करता है एक कमेटी, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसमें दोनों के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के भी, लोकसभा के। इस पर्टिकुलर कमेटी में जो मेंबर्स होंगे दे आर लेजिस्लेटर्स। ओके, तो लेजिस्लेटर्स होंगे, दे डोंट हैव एन आइडिया ऑफ द स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स ऑफ द अकाउंट, बिकॉज रिपोर्ट्स डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस माइनस नहीं करना है, वी हैव टू स्टडी ऑल द टेक्निकल पॉइंट्स ऑल्सो ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स। तो जो रिपोर्ट्स आएंगी उस पर्टिकुलर में आपका क्या टेक्निकल पॉइंट है, सो वी हैव टू सी दैट पार्ट ऑल्सो। सो इन दैट केस वी नीड अ पर्टिकुलर वन अथॉरिटी। तो जो रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के पास आएगी उसको स्टडी करेगी हमारी ये कमेटी, दैट इज पैक। लेकिन इसको स्टडी करने के लिए जो हेल्प करेगा दैट इज अगेन आर कैग, बिकॉज ही इज अ person of a technical knowledge, that terms which will make a study a clear point of the particular report, कि जो बजट्स आए हैं, जो सारी टेक्निकल टर्म्स है, प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट, everything will be made clear to the legislators, because जो पैक में होंगे they are legislators, members of the Lok Sabha and Rajya Sabha। I think there are 22 members, but we have to confirm 15 plus 7, this is something the नंबर। ओके, व्हेन वी विल स्टडी दिस पार्लियामेंट्री कमिटीज उसमें भी हम अच्छे से करेंगे, बट द थिंग इज, सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस विच वी फॉलो फॉर द स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। Now, the reports of the CAG of India relating to the accounts of a state shall be submitted to the governor, and इसमें governor किसको करेंगे, that he will lay to before the legislature, process will be same, but उसमें president and here is the governor। There's one more article related to this particular, that is article number 279। Calculation of net proceeds is ascertained and certified by the CAG of India, whose certificate is final। कुछ जो net proceeds है उसमें किसी की certification final है, so he is the only a CAG। So oath जो है, third schedule of the Constitution of India prescribes the form of oath or affirmation। हमने जब schedules पढ़े थे, so मैंने आपको एक पढ़ाया था TEARS, Tears of Old PM। Third schedule was related to affirmations and ओके, सो एफर्मेशंस, ओथ एंड ऑल। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव में उसमें हमने एक CAG भी किया था, सो उसमें मैंशनड है। सो पर्टिकुलर जो CAG अपनी ओथ लेंगे दैट विल बी फ्रॉम द थर्ड शेड्यूल, उसमें मैंशनड है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड टर्म। सो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, एंड अंडर द सील ऑफ किसका, प्रेसिडेंट के अंडर। कैग होल्ड्स ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years विच इज अर्लियर। या तो वो 6 साल तक ऑफिस होल्ड करेंगे, या वो अगर पहले 65 years के हो गए तो तब तक, दोनों में से जो भी पहले खत्म होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज फॉर द टर्म। नाउ रिमूवल, रिमूवल के लिए ही कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस। किसने, जिसने अपॉइंट किया उसी के पास रेजिग्नेशन लेटर जाएगा, एंड दैट इज द प्रेसिडेंट। Okay, next is he can also be removed by a president on same grounds and in the same manner as the judge of the Supreme
Court. So when we study the removal of the judge of a Supreme Court, which we will study in the further lectures, जब हम Supreme Court, High Court पढ़ेंगे, so removal के लिए we have 2 points. One is misbehavior and second is incapacity. So but there is a specific one procedure to carry on, which is mentioned in the Constitution, ठीक है, जिसके behalf पे ही आप judges of Supreme Court को remove कर सकते हैं. So when it comes to the CAG, we follow the same procedure. So in other words, he can be removed by the president on the basis of the resolution passed to the effect by both the houses of parliament with कौन सी majority? Special majority. Make sure आपको सभी offices की majorities याद हो. हमने absolute majority पढ़ी थी किस में? Vice president में. Special majority की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, either on the ground of proved misbehavior or incapacity. Okay, so that's all about the removal. Term कितना बोला हमने? या तो 6 years या 65 years. Removal के लिए या तो वो resign कर सकते हैं president से, but in case if you want to remove him, you will remove on only 2 grounds, that is misbehavior and incapacity, and there is a specific mentioned procedure for that, which is same as the judges of the Supreme Court. Okay, so मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, या जब हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें वी हैव मेंशन दैट दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफिस. सो व्हाट इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफिस? फाइन. सो इस पर्टिकुलर ऑफिस के जो इंडिपेंडेंस है, दैट इज अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. सी, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट. But there are specific points mentioned in the Constitution for the procedure of the removal also. ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन जब रिमूव की बारी आई तो वो एक दिन फ़ोन किया कि आप मैसेज भेज देगा कि नहीं, नाउ यू आर रिमूव्ड एज द CAG. नो, ऐसा नहीं होगा. ही हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक प्रोसीजर. ठीक है, एक रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा. रेजोल्यूशन को दोनों हाउसेज में भेजा जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होगा. एक कमेटी फॉर्म होगी जिसमें उस पर्टिकुलर मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी को प्रूव करने के लिए बोला जाएगा. ठीक है, बिकॉज दीज आर ओनली द 2 ग्राउंड्स. थर्ड थिंग इज CAG को भी एक मौका दिया जाएगा अपीयर. सो देयर इज अ वेरी प्रोसीजर विच इज मेंशन इन आर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसलिए सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर क्यों है? बिकॉज ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने फोन किया एंड यू विल बी रिमूव्ड. नो, प्रोसीजर होगा, टाइम लगेगा उसमें, फिर दैट विल बी अप्रूव्ड पॉइंट, तभी आपको रिमूव किया जा सकेगा. सेकंड थिंग विच इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस, दैट इज द फर्दर ऑफिस. आपको आप नहीं ले सकते हैं इसमें. ठीक है, अगर आप एक बार CAG बने, यू कैन नॉट होल्ड फर्दर ऑफिस, एनी फर्दर ऑफिस इन योर coming career. Okay, next is salary and other service conditions are determined by the parliament. His salary is equal to that of judge of the Supreme Court. लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, सैलरीज ये वो सब कुछ किस में मेंशन है, वी हैव स्टडीड इन द सेकंड शेड्यूल. बट द थिंग इज, ड्यूरिंग द टर्म यू कैन नॉट डिमिनिश द पर्टिकुलर थिंग्स. जो आपने अलाउंसेस दिए हैं, जो आपने सैलरी दी है, जो आपने स्टार्टिंग में मेंशन की होगी, दैट विल बी फाइनल थिंग. ऐसा नहीं है कि बीच टर्म में आप उसको कम कर देंगे. नो. So that also ensures the independence of this office. Second is administrative expenses of the office of the CAG charged upon the consolidated fund of India. और जो नहीं सब्जेक्ट हैं किसके? पार्लियामेंट से. ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट वोट करेगा तभी आप उस पर्टिकुलर फंड को यूज कर सकें. नहीं, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्जेस हैं, दैट इज टेकन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही CAG की हमारी सैलरी आती है. नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द CAG इन पार्लियामेंट. किसी दिन CAG नहीं है तो ऐसा नहीं है कि CAG ने फोन किया तो कोई भी मिनिस्टर आ जाएगा, चलो आज मैं CAG बन जाता हूँ. ऐसा नहीं है. CAG की जो अथॉरिटी है, दैट इज उसी की होगा, उसी को ही आना पड़ेगा. ठीक है, नो, ऐसा नहीं, कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट का उठ के आपके CAG का ऑफिस में एक दिन के लिए फंक्शन कर जाएगा. सो finally, what are the roles of the CAG? So CAG audits the accounts related to all expenditure from the consolidated fund of India, consolidated fund of each state, UT having legislative assembly. Audits all expenditure from the contingency fund, public account of India as well as the contingency fund and seat. तो हमने consolidated fund of India, contingency fund of India और public account, इन तीनों में जब हम चीज देखते हैं, सो दैट इज गिवन इन पर्टिकुलर थिंग. इन चीजों को कौन स्टडी करता है? इनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो कौन स्टडी करता है? दैट इज CAG. टू ऑडिट द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर एंड ईच स्टेट. CAG ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स. नेक्स्ट इज टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी, लोकल बॉडीज व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर. तो इन शॉर्ट, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, रिसीट्स होंगे, everything of the state and the union will be studied by whom? That is our CAG. ठीक है. So next is he acts as a guide, friend and philosopher of the public account committee of the parliament. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि चीजें कैसे हैं.
बिकॉज अगर कोई रिपोर्ट जाएगी सीएजी के थ्रू, किसके पास जाएगी? लोकसभा, राज्यसभा, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और इसको भी कौन असिस्ट करेगा? दैट इज सीएजी. तो बेसिकली ही इज द फ्रंट फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट. सीएजी इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट बिकॉज ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंडक्ट्स ऑडिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट. ये पॉइंट रिपीट होगा, ठीक है. सो दैट इज द सेम पॉइंट ऑफ व्यू द पीएसी. तो बेसिकली इज द एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट. ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द स्टडिंग ऑडिटिंग ऑफ द रिपोर्ट्स. ओके, सो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट टू द प्रेसिडेंट, एंड व्हेन इट कम्स ऑफ द सेंटर देन इट इज सबमिट टू द प्रेसिडेंट. व्हेन इट विल बी ऑफ द स्टेट ही विल सबमिट टू द गवर्नर. हु शैल इन टर्न प्लेस देम बिफोर, ये हमने आपको अभी पढ़ा दिया है. सेम मैटर रिपोर्ट जाएगी पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसको पढ़ेगी. दिस इज सो 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट. कौन कौन सी? ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, report on finance accounts, and the third is audit report on public undertakings. Okay, so these are the role, duties, reports, everything related to the CAG office. Now मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि this particular office has been taken from the Britain, लेकिन वो different कैसे? So here we will study the difference between the two offices. When it comes to the CAG India, तो उसके पास कौन सा ऑडिट रोल है? दैट इज ऑडिट एंड चलर एंड नॉट अ कंट्रोलर. बट व्हेन इट इज इन द केस ऑफ ब्रिटेन ही एक्ट्स एज द बोथ कंट्रोलर भी एंड द ऑडिटर जनरल भी. नेक्स्ट इज इन इंडिया CAG ऑडिट्स द अकाउंट आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज कमिटेड. जब पूरा हो जाएगा, जब हमने बजट ईयर सेशन के स्टार्ट किया उसमें या बीच में जब खर्चा कर रहा है, अगर आपको पता भी लग रहा है कि पार्लियामेंट गलत कर रहा है, तब भी CAG नहीं बोल सकता बिकॉज ही इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. बट उसका रोल कब आएगा? 31 मार्च को, जब सारी रिपोर्ट्स बनेंगी. एवरी डिपार्टमेंट हैज टू सबमिट हैज रिपोर्ट्स. उस टाइम पे जो ऑडिटिंग का रिपोर्ट आएगा वो कौन स्टडी करेगा? CAG. तो बेसिकली CAG का जो रोल है आफ्टर फुल एक्सपेंडिचर इज डन, उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज पे काम किया जाएगा. नेक्स्ट इज CAG इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाइल इन ब्रिटेन CAG इज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड. इसको आप ध्यान रखिएगा कि व्हाट मेक्स द CAG ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटेन. सेम एज वी हैव स्टडीड इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. Now, there's one committee related to the Vinod Rai. He's also a former CAG of our country. तो इन्होंने एक चीज़ कही थी, bring all private public partnerships, पंचायती राज institutions and government funded societies within the ambit of the CAG. Next is CAG Acts of 1971 should be amended to keep pace with the changes in the governance. A collegium mechanism to choose a new CAG on the lines of selecting a chief vigilance commissioner. So these are the particular suggestions given by the Vinod Rai committee, but अभी तक अप्लाई नहीं हुई है. Let's see what will happen in the future. So here is the public account committee, जो हम बार बार बोल रहे हैं public account. So just see a slide. ये is a parliamentary standing committee under Government of India Act 1919 में. Then audit reports are handed over to. So this here we have mentioned the same process जो मैंने आपको पहले बोला था. So once more we will repeat that thing. कि एक डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट कौन बनाएगा? CAG बनाएगा. वो रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट वो लोकसभा राज्यसभा में देंगे. देन PAC विल कम टू द सेंट एंड PAC को कौन हेल्प करेगा? CAG. तो PAC में जो मेंबर्स होंगे दे विल बी अ लेजिस्लेटर्स. ओके, CAG इज अ एग्जीक्यूटिव. So executive is responsible to the legislature. So this is one more thing that is a फेडरलिज्म ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, कैसे चीज़ें लिंक्ड है, पावर्स आर शेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो दिस ऑल्सो गिव द फेडरलिज्म. एक और पॉइंट जो हमारे फेडरल लेफ्ट टू राइट डॉट्स अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी. इसमें प्रीएम्बल भी आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर भी आ गया. सो फेडरलिज्म, बिकॉज व्हाट इज फेडरलिज्म? शेयरिंग ऑफ द पावर्स. यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, पावर्स गेटिंग शेयर. सो हियर इज द थिंग विच मेंटेन्स द फेडरलिज्म ऑफ आवर कंट्री. सो लेट्स सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर दिस. Next is, which of the following provisions ensure the independence of the office of the CAG? Okay, so his salary can be altered by the parliament only. Okay, he cannot hold any private office after he ceases to hold his office as CAG. Wrong. Government office भी वो held नहीं कर सकते हैं. Next is, okay, sorry. The administrative expenses of the office of the CAG are charged upon the consolidated fund of India. So first and third answer will be C. Next is, in India, other than ensuring that public funds are used efficiently and for an intended purpose, what is the importance of the office of the CAG?
So we will study CAG exercises exchequer control on behalf of the Parliament when the President of India declares national emergency and financial emergency. तो क्या ऐसा है? क्या हमने पूरे इसमें ऐसा पढ़ा कहीं पे? नेक्स्ट इज CAG रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. Information from CAG reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the law while managing public finances. While dealing with the audit and accounting of the government companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting those law who violate the law. आपको इसमें बताना है कि which is the correct statement. ओके तो आपने ये चीज़ कभी भी नहीं पढ़ी कि उनके पास जुडिशियल पावर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट इज पार्लियामेंट एक्सचेकर, ये भी नहीं है. सो द ऑप्शन इज सेकेंड एंड थर्ड. CAG रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्टर्स आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी. सेम थिंग, कौन बात करेगा? CAG रिपोर्ट करे, CAG उनको एग्जिस्ट करेगा, किसको? PSC कमेटी को, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट होगी वो भी कौन बताएगा? CAG. इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CAG रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंसेस. ऑफ कोर्स इतना सुप्रीम ऑफिस है तो उनकी जो भी रिपोर्ट्स होंगी उनको यूज किया जा सकता है. सो आंसर विल बी सी. नेक्स्ट इज under which of the following provisions of the constitution the office of the CAG mentioned. किस ऑफिस में ये चीज़ mentioned है? 148 सेकेंड थर्ड शेड्यूल. तो 148 तो हमने पढ़ा ही है. सेकेंड ऑफ कोर्स फॉर द that emoluments, oath, salaries, and third schedule is related to the oath. तो तीनों में ही CAG mentioned है, बिकॉज हमने जब भी पढ़ा तो लोकसभा के मेंबर्स पढ़े, राज्यसभा का मेंबर पढ़ा, प्लस वी हैव स्टडी वन मोर ऑफिस दैट इज CAG, एंड CAG में दैट इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. द ऑप्शन विल बी डी. So that's all for this particular office of the CAG. I just hope कि आपको ये अच्छे से clear हो गया होगा. Basically you should know the articles of this particular office, plus you should know how the process of the PSC मतलब reports बनाने के बाद PSC कैसे function करता है हमारे CAG के साथ. So that's all. I just hope कि you like this lecture. Thank you so much. Do revise all the lectures till जो भी तक हमने cover किए हैं Polity Bites.